السلام علیکم. مجھے یقین ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور رمضان کا مہینہ ہے تو گھر میں بڑی خاموشی سی ہے، سب عبادات میں مصروف ہیں اور مجھے بولنے کی بہت عادت ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات. تو میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے باتیں کروں، بولوں، اور کسی خاص موضوع پہ نہیں تو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناؤں، چھوٹی چھوٹی باتیں سناؤں، واقعات سناؤں جو میں نے پڑھے ہیں اور جو میں نے سنے ہیں لوگوں سے اپنی زندگی میں. تو میں آج آپ سے یہی چھوٹی چھوٹی واقعات سناؤں گی، کس نے کیا کیا، کون کیسا ہے، آپ کو اچھا لگے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، شاعر، بڑے بڑے ادیب، تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کا ذہن کھل جاتا ہے، اچھا سوچتے ہیں، بڑا بڑا سوچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نکچڑا پن نہیں کرتے، ناراض ہو گئے، منہ پھیلا لیا، یہ تم نے مجھے یوں کیوں کہا، تم نے مجھے یوں کیوں کہا، ایسے نہیں ہوتا ہے. تو میں آج آپ کو ایک قصہ سناؤں گی علامہ اقبال کے زمانے. علامہ اقبال کیا تھے یہ آپ کو سب کو پتہ ہے. بہت بڑے شاعر، پڑھے لکھے، بہت بڑے زمانے کے، بہت بڑے مفکر، شاعر مشرق. تو ان کے زمانے میں لیڈیز بہت کم پڑھتی تھیں، عورتیں تعلیم یافتہ کم ہوتی تھیں. اور علامہ اقبال کے ایک دوست تھے بہت بڑے، آپ نے شاید نام سنا ہو، شبلی نعمانی. وہ ادیب تھے اور سب سے بڑا ان کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے سیرت النبی لکھی پہلی دفعہ. سیرت النبی شبلی نعمانی نے. علامہ اقبال شاعر تھے، دونوں پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے، بہت زیادہ. تو ان کے زمانے میں عورتیں کم پڑھتی تھیں، تعلیم یافتہ کم ہوتی تھیں، لیکن اسی زمانے میں بہت کم عورتیں پڑھتی، گنی چنی دو چار. لیکن چونکہ وہ بھی پڑھی لکھی ہوتی تھیں اور بہت کھلے دل کی، کھلے ذہن کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو انسان ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ان کا نام تھا عطیہ فیضی. اور وہ ان کے شوہر جو ہیں بہت بڑے آرٹسٹ تھے اور وہ خود بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں. شاعری تو نہیں کرتی تھیں، لکھتی لکھاتی تھیں اور بڑی بہت زیادہ حسین نہیں تھی، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے بڑی اسمارٹ. اور ساڑی پہنتی تھی، ساڑی پہن کر آئیں وہ کسی فنکشن میں کہیں. تو علامہ اقبال سے اور شبلی نعمانی سے پہلی دفعہ تعارف ہوا. آپ غور سے سنیں اور سوچیں کہ پہلے زمانے کی خواتین بھی کیسی تھیں اور پڑھی لکھی خواتین بھی کیسی ہوتی ہیں. تو علامہ اقبال کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی. اب علامہ اقبال نے سوچا کہ میں ان کی تعریف کیسے کروں، تعریف کرنا ضروری تھی. یہ زمانہ نہیں تھا آج کل کا کہ ڈر رہے ہیں تعریف کیسے کروں، تعریف کروں گا تو لڑکی نکچڑی ہو جائے گی، ڈانٹے گی، بھائی سے کہے گی. نہیں نہیں نہیں، پڑھے لکھوں کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. اچھا، تو علامہ اقبال نے کہا کیا کروں. انہوں نے پہلے زمانے میں یہاں ایک جیب ہوتی تھی ادھر گلے کے پاس، اس میں پین لگا کے رکھتے تھے لوگ. یہ بال پوائنٹ نہیں ہوتے تھے، پین نکالا انہوں نے اور لکھوں کس پہ، تو سگریٹ پیتے تھے، سگریٹ کے ڈبے پھاڑ کے اس پہ ایک شعر لکھا. آپ سوچیں کتنی جرت ہے شاعر کی. انہوں نے لکھا عطیہ فیضی کے نام، عطیہ فیضی کے نام ان کو دینے کے لیے کہ عالم جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ. عالم جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ. روا کا مطلب ہے جائز. عالم جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ، کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں. لکھا اور عطیہ فیضی کو دے دیا. اب عطیہ فیضی نے پڑھا اپنی تعریف اور سمجھ گئی کہ علامہ اقبال کو میں پسند آ گئی. اچھا، انسان کسی کو پسند آ سکتا ہے. اب میں عورت ہوں، مجھے اچھی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے نا. مرد بھی پسند کر سکتا ہے اچھی عورت، پسند تعریف کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے وہ پڑھا شعر، عطیہ فیضی نے بڑی مسکرائی، محظوظ ہوئی اور وہ چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے تھے اس میں ڈال دیا. اور شبلی نعمانی جو ہیں وہ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے. لیکن ان کو اتنی پسند آئی کہ وہ درے پردہ عاشق ہو گئے ان پہ. کہا کچھ نہیں. دوست تھے دونوں، علامہ اقبال اور شبلی نعمانی. جب باہر نکلے، فنکشن ختم ہو گیا تو شبلی نے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے یہ. اچھا، مزے کی بات سن لیں کہ عطیہ فیضی شادی شدہ تھیں اور جب علامہ اقبال نے شعر لکھ کے دیا ان کے شوہر قریب کھڑے ہوئے تھے. لیکن کیا بڑے لوگ تھے، کھلا ذہن، تعلیم یافتہ لوگوں کی بات ہی کچھ اور ہے. شاید پسند آیا آپ کو ایک قصہ تعلیم یافتہ لوگوں کا، علامہ اقبال کا، ان کی زندگی کا قصہ. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور سناؤں، چھوٹے چھوٹے قصہ سناؤں گا کہ وہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. تو غالب جو ہیں شاعر، وہ تو غزل کے شاعر تھے، ہجو کے شاعر تھے، فلسفے کے شاعر تھے، سیرہ بندی کے شاعر تھے اور تک بندی کے شاعر تھے. اور فوری طور پر اچانک
फ़ौरन शेर कहने के शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, बरसगीर पाक व हिंद के शायर थे, और अभी भी इंडिया तक में उनको पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में तो करते हैं। तो उनके दोस्त थे बहुत सारे गालिब के। तो गालिब आपको पता होगा आशिक मिजाज थे, सबको पता है, शायर थे। तो उनके दोस्तों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि किसी दिन गालिब को हम तंग करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। 2-4 दिन के बाद इत्तेफाक से उन्हें मौका मिल गया मजाक उड़ाने का। बरजुस्तगी थी गालिब में, बरजुस्ती के मतलब फ़ौरन शेर कहना, मौका में उसी वक्त कहना। तो दूर से एक जमदारनी आ रही थी। पहले ज़माने में जमादारनियाँ जो होती थी ना, गालिब के ज़माने में टोकरी रखती थी, उसमें कच्चा वचा डाल के सर पे रख लेती थी और झाड़ू ऐसे बगल में दबा के हाथ में रख लेती थी। तो गालिब के जो दोस्त थे उन्होंने दूर से जमादारनी को देखा और कहा, गालिब मिर्ज़ा 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 कहते थे गालिब को, मिर्ज़ा इधर देखे उधर। गालिब ने देखा कि नहीं, वो देखें आपकी महबूब आ रही है, आपकी माशुका आ रही है, जमादारनी को कहा। अब गालिब थोड़ी देर के समझ गए कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन गालिब तो गालिब थे। गालिब ने कहा, देखा जमादारनी को और कहा कि भाई किस शान से आता है महबूब हमारा। जमादारनी को देख कर कहा, लोगों ने कहा आपका महबूब है, तो उन्होंने बुरा नहीं माना, गुस्सा नहीं किया, मान लिया महबूब है। किस शान से आता है महबूब हमारा, सर पे उठाया आसमान और हाथ में दुमदार सितारा। वो टोकरी को आसमान बना दिया और तारीफ कर दी महबूबा की। और जो छेड़ने वाले थे दोस्त चुप के चुप रह गए। वाह भाई मिर्ज़ा, वाह। नौशा मियाँ भी कहते थे गालिब को, नौशा मियाँ, नौशा कहते हैं दूल्हे को। नौशा मियाँ आपकी क्या बात है, आपने कितना बरजुस्ता शेर का है। तो गालिब का कमाल था ये, बहुत बड़ा। और उस ज़माने में जो है बच्चों को समझाना सिखाना। और अब मैं अपने घर की एक कहानी सुनाऊँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने कभी हमें डांटा नहीं, मानना तो बहुत बड़ी बात है। अम्मा से हमारा ताल्लुक़ था, अम्मा डांटती भी थी कभी कभी, अगर बहुत ज़्यादा भाई हमारे शरारत करें तो एक हाथ मार भी देती थी। बचपन की बातें हैं पुरानी। तो वालिद साहब हमारे सरकारी अफसर में जॉब करते थे। तो एक दफ़ा आए, घर आ रहे थे, तो हमारा फ्लैट था यहाँ बंदर रोड पे, शुरू में पाकिस्तान बना था। हम सब बहन भाई छोटे छोटे थे, तो खेल रहे थे बच्चों के साथ। भाई हमारे मुझसे बड़े हैं 2-3 साल। तो वालिद साहब ने सुना कि वो एक लड़का था खेलने वाला, उसने हमारे भाई को गाली बक दी, कोई गंदा बैड वर्ड कह दिया, कोई गंदी सी बात कह दी। वालिद साहब ने सुन लिया, घर आए, देखें पहले के वालिदैन कैसे थे, किस तरह समझाते थे बच्चों को। घर आए और कहने लगे, बात सुने, वो एक लड़का है, उसने तुम्हें गाली बकी है। हमारे भाई सर झुका के खड़े हो गए। वालिद से तो हम बहुत डरते थे, सामने नहीं जाते थे उनके। तो मैंने सुन लिया गाली बकी, भाई ने गर्दन झुका दी, कुछ नहीं कहा। तो मेरी अम्मी बोली, कहने लगी गाली तो उसने बकी है ना, तो आप इससे क्यों पूछ रहे हैं। और बाप ने कहा तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो मेरी अम्मी ने कहा इसको क्यों सज़ा मिलेगी भाई, गाली तो उस लड़के ने बकी है, इसने थोड़ी बकी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि सज़ा इनको यूँ मिलेगी कि ये ऐसे गंदे लड़के के साथ खड़े क्यों हुए, इतने गंदे लड़के से दोस्ती क्यों की जो गालियाँ बकता है। बात समझ में आई। इस तरह समझाते थे वालिदैन। ये नहीं कि चलो चलो लड़ने चलते हैं, उसने तुम्हें गाली क्यों बकी, लड़ो उससे, उसके माँ बाप शिकायत करो, उससे मारो ना ही नहीं। अपने बच्चे को समझाओ कि तुम दोस्त बनाओ ऐसा जो तुम्हारे जैसा हो, गालियाँ ना बके। सोचें सर। तो ये पहले ज़माने के जो लोग थे, ये उनकी छोटी छोटी बातें थी और पढ़े लिखे लोगों की बातें थी। और अब मैं आपको बताऊँ एक बात, छोटा सा किस्सा सुनाऊँ। बहुत सारे किस्से तो मैं भूल जाती हूँ। तो एक किस्सा ये है कि शौकत थानवी बहुत बड़े राइटर थे, पाकिस्तान में कराची में थे। उनको मरे हुए मेरे ख्याल में इंतकाल किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन बहुत बड़े किताबें लिखते थे, कहानी लिखते थे, मज़ाहिया शायर भी थे, थोड़ा सा मिज़ा भी लिखते थे। शायर नहीं, सॉरी, अदीब थे, मिज़ा भी लिखते थे, अच्छी अच्छी किताबें लिखते थे। तो हम लोगों को ख़ास तौर से मुझे बहुत पसंद थे शौकत थानवी, मैंने उनकी बहुत किताबें पढ़ी। जब मेरे शौहर हैं ना, उनको भी बहुत पसंद थे। मेरे शौहर बड़े पढ़ने लिखने के शौकीन थे। अब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो अल्लाह मियाँ के पास हैं। तो उनको भी बहुत पसंद थे, वो शौकत थानवी किताबें ला के देते थे, हम पढ़ते थे। तो मेरे शौहर ने जब मास्टर किया, बहुत उम्र भी किया काफ़ी टाइम, उन्हें शौक़ था पढ़ने लिखने का। तो वो मुकाला लिखा जाता था पहले कि भाई आप मास्टर कर रहे हैं तो किसी शायर पे, किसी अदीब पे एक मुकाला, एक किताब लिखें, छोटी सी किताब लिख कर लाएँ। आपने मास्टर कर लिया तो आपको किताब लिखने की सलाहियत होनी चाहिए। तो उन्होंने शौकत थानवी पर किताब लिखी, पूरी जो इतनी बड़ी रजिस्टर लिखा, उसकी किताब छपाई।
तो फिर वो यूनिवर्सिटी में जमा करा दी होती थी, मेरे ख्याल में अभी भी सीनी यूनिवर्सिटी से किया था, सीनी यूनिवर्सिटी में होगा वो। और फिर मैं अपने शौहर की बड़ी मदद करती थी, तो उसके लिए मकाला शौकत थानवी भी लिखना था, तो बहुत सारी किताबें शौकत थानवी से मुतालिक जमा की गई, दिन रात मेहनत की। कभी मैं बोलती थी वो लिखते थे, कभी मेरे शौहर बोलते थे मैं लिख देती थी, बड़ी मदद करती थी। तो बहरहाल उस एक किताब उनकी पढ़ी, तो उसमें शौकत थानवी की 2-3 बातें मुझे याद रहेंगी छोटी सी। कहने लगे कि वो मेरी बहन की शादी हुई, तो बारात आई, तो पहले ज़माने में होता था बारात आती थी, चाहे भाई की शादी हो बहन की, जो मुखालिफ लोग होते थे वो मजाक उड़ाते थे लड़कों का, इधर दूल्हा वालों का, दूल्हा वाले दुल्हन वालों का। तो कहने लगे बारात के साथ एक साहब आए, बहुत उम्र भी नहीं थी और बहुत लड़के भी नहीं थे, और माशाल्लाह बहुत मोटे से थे और काला रंग था उनका। अब वो मुझे छेड़े जा रहे हैं, मैं दुल्हन का भाई था, जिधर से गुजरा हूँ छेड़ रहे हैं, भक्ति कस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, ये तो मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। फिर जब निकाह हो गया, खाना वाना हुआ, खाना ख़त्म हुआ, मैं उनके साथ बड़े अदब से गया और मैंने उनके हाथ जोड़े और उनसे कहा कि देखें मेरी एक बात सुनो, जब आप फौत होने लगे, जब आपका वक्त आ जाए और आप फौत होने लगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके खाल का सूटकेस बनवाऊँगा। ये सुन के बस ऐसे हो गया, हिलने लगे और बड़ी उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की। तो जब मुझे छेड़े जा रहे थे तो मैंने ऐसे अदीबाना जवाब दे दिया उनको। तो ये शौकत थानवी थे, बड़े मिजाजी अंदाज में लिखते थे और बड़ा मुझे बहुत पसंद थे। फिर अपनी बीवी का किस्सा सुना थे वाइफ का, कि मेरी बीवी जो थी बहुत इबादत गुजार थी और 5 वक्त की नमाज तो सब पढ़ते हैं, और कुरान और तहज्जुद और हर वक्त नमाज, सिरो नमाज बड़े खुशू के साथ, बड़े एतमाद से पढ़ती थी। और मैं अभी थका आया हूँ, किताब लिखी है मैंने, मुझे चाय पीने नहीं चाह रहा है, मुझे चाय चाहिए, वो अपनी इबादत में लगी है। तो मुझे कभी कभी मजाक सोचता था, तो मैं क्या करता था कि इसको किस तरह, नमाज तो नहीं तोड़ सकती है। तो हमारे घर में पहले ज़माने में मुर्गियाँ पली होती थी, पहले सब क्या, तो मुर्गियों के लिए एक बहुत बड़ा टोकरा था, बहुत बड़ा टोकरा, जिसमें मुर्गियाँ बंद की जाती थी। तो वो टोकरा पड़ा हुआ था, दिन का वक्त था, मुर्गियाँ इधर उधर थी, मैं वो टोकरा उठा के लाया, जैसे ही मेरी बीवी सजदे में गई, मैंने टोकरा उसके ऊपर ढक दिया, और वो बट्टा होता ना सिल पीसने का, वो बट्टा ला के वजन रख दिया उसके ऊपर। अब वो ऐसे ऐसे गोल गोल हिल रही है, ऐसे ऐसे कर रही है कि मुझे निकाले, मगर मैंने सोचा इसकी नमाज़ टूट जाएगी। फिर भी मैंने कहा भाई टूट जाएगी तो ये दोबारा नमाज़ पढ़ देगी, लेकिन मैं इसको, ये सज़ा थी उसकी, यानी मजाक के अंदाज में बीवी से लड़े झगड़े, उससे कुछ कहें, वो कहे कि भाई मैं तो इबादत कर रही हूँ, अभी क्या कर रहे हैं। तो ये मज़ाही अंदाज शायरों के होते थे। और वही मैं कहूँगी कि तालीम बड़ी चीज़ है, तालीम तो लोगों की बातें बड़ी चीज़ हैं। तो ये अगर आपको छोटी छोटी चुटकुले पसंद आए हों, मुझे अल्लामा इकबाल का बहुत पसंद आया था, बहुत ही अच्छा लगा था, और शौकत थानवी का भी। आपको पसंद आया? पसंद आया ना? तो बार बार उसको दोहराइएगा और महसूस हुइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।